Okay, Ji, chapter number 2, we are going to start page number 16, and this is reading activity. And after this, we will do the same activity, okay? So that you can learn how to tell about past experiences, how you use past tense in telling the past experiences. ये आपके पास कुछ स्टोरीज मौजूद हैं बाज लोगों की कि उनको क्या डिफिकल्टी पेश आई थी, क्या डिफिकल्ट एक्सपीरियंस किया था उन्होंने और उन्होंने क्या फील किया था, ये भी इसके अंदर वो बताएंगे. तो वी विल रीड ऑल दीज फोर पैसेजेस and get the idea how to express your difficult time in your past using the past tense. Because as you know, in this chapter, what we are doing, we are using past tense, past simple and past progressive. Okay, ji. So we can start the reading so that we can create our own story on the basis of understanding the structure of past tense by these passages. Todd usually types very well, but he didn't type very well today. In fact, he typed very badly. While he was typing, his supervisor was standing behind him and looking over his shoulder. It was a difficult experience for Todd. He realized he wasn't typing very well, but he couldn't do anything about it. He was too upset. बस इसी तरीके से आपने अपने एक्सपीरियंस को ना तरतीब से जोड़ के बयान कर देना. Yes, Zainab. The Baxter boys usually sing very well, but they didn't sing very well last night. In fact, they sang very badly. While they were singing, their parents were sitting in the audience and waving at them. It was a difficult experience for the Baxter boys. They realized they wasn't singing very well, but they weren't singing very well, but they couldn't do anything about it. They were too embarrassed. Okay, understand कर लिया आपने इसको? Yes. Okay, लास्ट मैं इसको रीड कर देता हूं ताकि आपको मैक्सिमम सिनेरियोज मिल जाएं. उसके बाद फिर हम इसको राइटिंग एक्टिविटी में राइट करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे. The president usually speaks very well, but he didn't speak very well this afternoon. In fact, he spoke very badly. While he was speaking, several demonstrators were standing at the back of the room and shouting at him. It was a difficult experience for the president. He realized he wasn't speaking very well, but he couldn't do anything about it. He was too angry. ओके जी, आखिर में उसकी फीलिंग भी लग गई पता. ये एंग्री था, ये एम्बैरेस्ड था, ये नर्वस था, ये अपसेट था. ठीक है. अच्छा जी, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिए थे. चलें, अगर आपने देखे हैं या नहीं देखे, उसके बावजूद भी हम ये एक्टिविटी भी कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये राइटिंग एक्टिविटी कर लेंगे. वो कह रहे हैं जी, वी ऑफन यूज कलरफुल एक्सप्रेशंस टू डिस्क्राइब हाउ वी फील. मतलब बाद औकात ना कुछ ऐसे एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं, हम अपनी जबानों में भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मैं मर गया. मतलब इसका मतलब ये नहीं होता मैं मर गया, तो थका हुआ हूं. इस किस्म के एक्सप्रेशन हर जुबान में पाए जाते हैं. तो इंग्लिश में भी हैं जी. ये देखें, जब ये कहा जाता है माई स्टमक इज ग्राउलिंग, इसका मतलब क्या होता है? ये आपने अगर देखा हो तो आप गेस कर सकते हैं. Hungry. वेरी गुड. माई स्टमक इज ग्राउलिंग, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे भूख लगी हुई है. Right? I didn't take my breakfast today and I have been working all the day. At night, my stomach is growling. I need food. ठीक है जी. सुबह से नाश्ता नहीं किया, सारा दिन काम करता रहा, रात को वापस आया तो my stomach is growling. Growl, ये जो ग्राउल एक आवाज होती है असल में. वो अगर आपने गौर किया हो ना, वो डॉग्स जो होते हैं कभी गर्रा रहे होते हैं, वो आवाजें.
ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। सेकेंड एक्सप्रेशन इज आई कांट कीप माई आईज ओपन। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर द टायर्डनेस। ओके, इफ समवन इज टायर्ड, he say, I can't keep my eyes open. I had been working all the night last night, so I'm really tired, even I can't keep my eyes open. ठीक है जी, तो ये एक्सप्रेशन आप टायर्डनेस के लिए यूज कर सकते हैं। The third one is I'm jumping for joy. Happy. Happy. Yeah, happy. Okay. He gave me the news and after this I was jumping for joy. उसने मुझे ये खबर सुनाई और मैं उसके बाद नाच गा रहा था। Okay. The fourth one is I'm seeing red. I'm seeing red. Red आंखें किस वक्त हो जाती हैं? आंखें रेड जब नींद पूरी। Angry. Angry. एंग्री, तो ये एंग्री के लिए यूज होता है। ओके जी। My teacher slapped me and I was seeing red on him. मैं गुस्से से देख रहा था उसको। ओके जी, द नेक्स्ट वन, आई एम फीलिंग ब्लू। ब्लू जो है ना जी, ब्लू ये सैडनेस के लिए होता है। आई एम फीलिंग ब्लू। व्हाई आर यू फीलिंग ब्लू? या, आई एम फीलिंग ब्लू बिकॉज someone told me a bad news about something. ओके जी, ब्लू है आपकी सैडनेस के लिए। और पिंस एंड नीडल्स, पिंस एंड नीडल्स का मतलब क्या? मतलब मैं, मतलब क्या कहते हैं, किनारे पे खड़ा हूं। किनारे का मतलब ये है कंफ्यूज हूं, इधर जाऊं इधर जाऊं, तो वो उस कंफ्यूजन के लिए है नर्वसनेस। तो ऑन पिंस एंड नीडल्स नर्वस के लिए होता है। आई एम शेकिंग लाइक अ लीफ। ओके, जैसे पत्ता हिलता है ना तो टांगे वैसे कपकपा रही होती हैं। द लास्ट वन, आई एम ashamed टू लुक एट them straight in the eye. Scared. Scared, डरा हुआ, scared। ठीक है जी, ये आपके एक्सप्रेशंस हैं। टेल अबाउट अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस यू हैड। ऊपर लोगों ने ना अपने डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। ठीक है, आपने भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, क्या हुआ था और आपने कैसा महसूस किया था। तो शुरू कीजिए जरा अपना, थोड़ा सा सोचिए और उसके ऊपर लिखिए। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिख देंगे ना तो फिर प्रेजेंट भी कर पाएंगे। Once I had a bad experience in my school. As a teacher, the coordinator invited me at the assembly stage, and I was supposed to deliver a speech before students and the teachers. So it was very first time for me. So my legs were shaking like a leaf because all the teachers and the students were watching at me, and I was really embarrassed. But at last, I covered this situation and I delivered a speech. And after ending up my speech, when I went down, teachers appreciated me that you did very well. You were a little nervous and embarrassed, but it's okay. So when they passed these comments on my presentation and the speech, I feel proud that I could well. ये मैंने आपको ऐसे अपना रियल इंसिडेंट बताया है। मतलब जब 2015 के अंदर मैं पहली मर्तबा एक स्कूल में जॉब करने गया था टीचर, तो वहाँ 13 फीमेल टीचर्स थी एंड आई वाज द ओनली मेल टीचर। तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आपने असेंबली इंचार्ज हैं और आप, बच्चियां जो है ना असेंबली में बड़ी होती हैं तो एक्सरसाइज हम नहीं करवाते, आपने डेली एक मोटिवेशनल स्पीच देनी है उनको। तो वो मैं तैयार करके आता था। बट मुझे याद है कि मुझे पहली मर्तबा मुझे बुलाया गया तो यही सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने भी रखी है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर असल में बोलने की और स्पीचेस देने की ना, लोगों को मोटिवेट करने की स्किल है। उसके बाद मैंने एक लंबा अरसा मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में जाके जो है ना वो ट्रेनिंग्स दी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। बट उसके बाद फिर एक लंबा वक्फा आया है जो आज तक बाकी है।
जी, are you done? Yes, sir. You can start. सर मैंने बहुत शॉर्ट सा लिखा है. It's okay. Mrs. Tahira cooked very well, but she didn't cook very well this morning. In fact, she cooked very badly because her husband came in kitchen and stand on her shoulder. She feels very embarrassing. ये आपने थर्ड पर्सन के बारे में क्यों लिखा? अपने बारे में लिखना था, अपना एक्सपीरियंस कि आपको डिफिकल्ट सिचुएशन पेश आई. सर मैं ये सिचुएशन तो वो है, रियल है, लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में. नहीं, अपने बारे में लिखना था, असल में अपने बारे में थी. आप जरा कोशिश कीजिए फिर से. जी मिस आयशा. सर मैंने थोड़ा सा लिखा है, बस 3 जुमले सिर्फ मुश्किल से. नहीं, आपने असल में थॉट में, मैंने आपको पहले भी मेरे ख्याल में बताया था कि इस किस्म की सिचुएशन में असल में करना क्या होता है. मतलब अगर प्रेजेंट करना है तो फिर आप सिर्फ नोट्स बना लें. अगर पूरी राइटिंग एक्टिविटी है तो फिर राइट करके तो बाद में सेंड कर सकते हैं. इस मुख्तसर टाइम में कम से कम आप प्रेजेंट तो कर सकते हैं नोट्स बना के. मतलब पूरा जो वाकया हुआ है ना आपकी जिंदगी में, उसके 2 3 4 लफ्ज आपके नोट्स में आने थे. सिर्फ उन्हीं को देख करके आप पूरा ख्याल बयान कर सकती हैं. चलें ट्राई करें. I had a difficult experience in my life when my teacher said to discuss a long topic in front of class. I feel very nervous and I forget how to say. Okay. Same situation. And forget how to deliver. बस सर इतना ही लिखा है. ओके. एक तो आपने फेल्ट यूज करना था, दूसरी फॉर्म यूज करनी थी फील की, और दूसरी फॉरगेट की, फॉरगॉट दूसरी फॉर्म यूज करनी है क्योंकि प्रेजेंट पास्ट सिंपल है. एंड यू कैन कंटिन्यू दिस सिचुएशन दैट when I couldn't do the long presentation before my class, so I felt embarrassed. But somehow I covered that situations and I delivered. But at home later, I thought that what was happened. So I thought I had to prepare myself for future opportunities so that I could not have such embarrassing situation. Getting it, Miss Aisha? जी सर. हाँ, इस तरह मतलब असल में ख्याल को कैरी करना है. अल्फाज खुद साथ दे देंगे, अगर ख्याल साथ नहीं होगा तो अल्फाज साथ छोड़ देंगे. ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें क्लियर हो. ये ज़ैनब. One difficult experience I had was moving to a new school. I didn't know anyone, and it was hard to make friends. But I started talking to my classmates, and they were kind. After some time, I felt better and made good friends. It was hard at first, but I learned to be brave. क्वेश्चन जी फरमाइए. सर आपने कहा कि फेल्ट यूज करना है और फॉरगॉट यूज करना है, मतलब एम्बेरस भी सेकंड फॉर्म है ना एम्बेरस की. यहाँ ये बतौर एम्बेरस. यहाँ बतौर वर्ब यूज नहीं हो रहा, एम्बैरेस्ड बतौर एडजेक्टिव यूज हो रहा है. अच्छा ठीक. आखिर में आपकी ये प्रोनाउंसिएशन एक्टिविटी है, और ये प्रोनाउंसिएशन एक्टिविटी वैसे मैं आपको पहले करा चुका हूँ. डिड यू का इस्तेमाल है एक्चुअली. डिड यू, अंग्रेज इसको डिड यू प्रोनाउंस करता है. डिड यू गो टू मैड्रिड, डिड यू स्पीक स्पेनिश, वेयर डिड यू स्टे, व्हाट डिड यू डू, डिड यू मीट व्हाट पीपल, इस तरीके से इसका इस्तेमाल है. बाकी आखिर में आपका ये जो है ना समरी है, इसको आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपका रह गया. वैसे इसमें रिव्यू था पास्ट का, और एक्सटेंडेड जो थी ना इसके अंदर एक्टिविटीज थी, तो इसको रिव्यू भी किया करें, देखा भी करें, और कोशिश किया करें इससे रिलेटेड रियल लाइफ में जो सिचुएशन आए, यू हैव ट्राई योर बेस्ट टू यूज दीज सिचुएशन इन इंग्लिश so that you gain confidence in speaking English, right? क्योंकि स्ट्रक्चर और नॉलेज तो आपको आती ही जा रही है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं,
अब इसका इजहार आप अपनी रियल लाइफ में करना शुरू करें और in this way you will feel confidence. So it's enough for today. If you have any confusion or question, you may ask. Otherwise, it's enough for today. फिर next chapter start करेंगे इंशाल्लाह.